Hello students, today we will do part 5 of group 16 elements. But before that, in case you have not subscribed the channel, please subscribe it. So today we will talk about allotropes of sulfur. Like carbon, sulfur also shows numerous allotropes in which it exists in various physical forms. Allotropes of sulfur can be crystalline or it can be amorphous. Example of crystalline allotropes of sulfur are rhombic sulfur and monoclinic sulfur, while the examples of amorphous sulfur are plastic sulfur, colloidal sulfur, milk of sulfur. आज हम सल्फर के दो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द टू एलोट्रॉप्स आर येलो रोम्बिक और अल्फा सल्फर while other crystalline allotrope of sulfur is monoclinic or beta sulfur. Yellow rhombic sulfur is stable at room temperature and it has octahedral shaped crystals, while in monoclinic sulfur we have needle shaped crystals. Now before studying the two allotropes of sulfur individually, हम जानेंगे what is transition temperature. For sulfur, transition temperature is 369 Kelvin. सल्फर के जो दोनों एलोट्रॉप्स होते हैं दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर. इफ यू हीट rhombic sulfur above 369 Kelvin, then it will transform to monoclinic sulfur. Below 369 Kelvin, rhombic sulfur is available, while above 369 Kelvin, monoclinic sulfur is there. And at 369 Kelvin, both the form are stable. So this temperature at which both the allotropes, that is alpha sulfur and beta sulfur, are stable is called transition temperature. एक चीज़ मैं अभी आपको जो बताऊंगी वो NCERT में मेंशन नहीं है, ना ही CBSE के सिलेबस का हिस्सा है, बट फॉर योर नॉलेज आई विल टेल यू वो ये कि ऐसे एलोट्रॉप्स जो एक दूसरे में बदल सकते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड इनएंटियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स. तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं सल्फर की, they are inenantiotropic allotropes because they can change their configuration from one form to another by some changes in temperature. तो सबसे पहले हम अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर के बारे में पढ़ेंगे. इट इज येलो इन कलर. its melting point is 385.8 Kelvin and specific gravity is 2.06. Rhombic sulfur is insoluble in water, but it can dissolve to some extent in benzene, alcohol and ether. It is readily soluble in CS2. CS2 मीन कार्बन डाइसल्फाइड में ये बहुत आसानी से घुल जाता है. Now we will talk about preparation of this rhombic sulfur. Rhombic sulfur को हम सल्फर रोल से बनाते हैं. सबसे पहले सल्फर रोल को CS2 में डिसॉल्व कर लिया जाता है. उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं so that insoluble impurities जो हैं वो रिमूव हो जाएं. आफ्टर फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है जिसके अंदर से हमने insoluble impurities को रिमूव कर दिया है, उस फिल्ट्रेट को we keep at room temperature so that we have slow evaporation of CS2.
CS2 का बॉइलिंग पॉइंट 46.3 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से इवेपोरेट हो जाता है और हमें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स मिल जाते हैं रोम्बिक सल्फर के. बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर अल्फा सल्फर फ्रॉम रोल सल्फर. नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर. Now melting point of this monoclinic sulfur is 393 Kelvin with specific gravity 1.98. This beta sulfur is also soluble in CS2 like alpha sulfur. It is stable above 369 Kelvin. If you decrease the temperature, then it will transform into alpha sulfur. तो अगर आप टेम्परेचर 369 केल्विन से ऊपर रखेंगे तो आपके पास बीटा सल्फर होगा, लेकिन टेम्परेचर को 369 केल्विन से घटाते ही ये जो है अल्फा सल्फर में चेंज हो जाएगा. नाउ इट्स प्रिपरेशन. इसको हम रोम्बिक सल्फर से बनाते हैं. सबसे पहले रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर लेते हैं, तो मोल्टन रोम्बिक सल्फर को उसके बाद कूल किया जाता है. जैसा कि आपने वाटर के केस में देखा होगा, जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो पूरा फ्रीज होने से पहले सबसे पहले क्रस्ट बनता है. अंदर वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन बाहर जो है वो सॉलिड बन जाता है. तो सिमिलरली जब आप मोल्टन सल्फर को कूल करेंगे तो ऊपर की तरफ क्रस्ट बनेगा, अंदर की तरफ सेंटर पोर्शन में सल्फर जो होगा इट विल बी स्टिल इन मोल्टन स्टेट. फिर हम क्या करेंगे, 2 होल्स बनाएंगे क्रस्ट में और उसमें से जितना भी मोल्टन सल्फर है उसे पोर आउट कर लेंगे, मीन बाहर निकाल लेंगे. और जब आप देखेंगे यू विल ऑब्जर्व नीडल शेप्ड बीटा सल्फर एट द बॉटम. आफ्टर दैट हम क्रस्ट को रिमूव कर लेते हैं टू गेट नीडल शेप बीटा सल्फर एट द बॉटम. तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि क्रस्ट को रिमूव करने के बाद जो नीडल शेप बीटा सल्फर होता है वो कैसा दिखता है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की. चाहे रोम्बिक सल्फर हो चाहे मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों के पास ही S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस S8 मॉलिक्यूल इज क्राउन शेप. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं. तो रोम्बिक बोले या मोनोक्लिनिक बोले, दोनों के ही टाइम में यू हैव टू ड्रॉ दिस क्राउन शेप S8 मॉलिक्यूल. ऐसे सल्फर जो होता है S8 के अलावा S20, S6 और भी बहुत सारी रिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हम अभी बात करेंगे S6 की. S6 इट एडॉप्ट्स द चेयर फॉर्म और S6 का अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है, चेयर फॉर्म वाला. नेक्स्ट इज एट एलिवेटेड टेम्परेचर. अगर आप सल्फर को चाहे रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक हो या S20 हो S28 हो, ये जितने भी सल्फर्स होते हैं अगर आप इनको हीट करें तो एट अराउंड 1000 केल्विन S2 जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज बनती है और ये जो S2 होती है लाइक ऑक्सीजन O2 इट इज पैरामैग्नेटिक. तो ये क्वेश्चन आ जाता है विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक in nature and why. Then you will write S2 जो फॉर्म है it is paramagnetic in nature due to presence of 2 unpaired electron in its anti-bonding molecular orbital. और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आता है कि जो रोम्बिक सल्फर है इट इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पे
वैसे भी हमें रोम्बिक सल्फर मिलता है। तो उसका आंसर ये है कि हालांकि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में दोनों में ही एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इन एसिड मॉलिक्यूल्स की फर्दर अरेंजमेंट दोनों में ही, रोम्बिक में भी और मोनोक्लिनिक में, अलग अलग होती है। रोम्बिक में ये अरेंजमेंट एफिशिएंटली पैक्ड होती है, रिंग्स एक दूसरे के ऊपर बेस टू बेस अटैच्ड होती हैं, like in this figure, while in monoclinic sulfur arrangement is not efficiently packed। तो आप ये फिगर्स में देख सकते हैं, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैंने कोशिश की है। सो अगर कभी ये आ जाए विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल, विच फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर अगर बोलें इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, answer will be rhombic form because it has efficient packing of 8-member sulfur ring। नेक्स्ट जो है टॉपिक आज का हमारा वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो हमने इसे पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आ सकता है एग्जाम में। Now we will start with preparation of SO2। SO2 को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट NCERT में 3 मेथड्स दिए गए हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी इक्वेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारी कंप्लीट द रिएक्शंस में आ जाती हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग SO2 इज by burning sulfur in air और ऑक्सीजन। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे हमें SO2 गैस मिलती है। एंड सेकेंड मेथड इज बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड, सल्फाइड मीन SO3 2- with dilute H2SO4। तो जब हम सल्फाइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं देन वी गेट SO2 along with other products। और थर्ड मेथड है industrially we can produce SO2 as a byproduct of roasting of sulfide ore। Now roasting का मतलब होता है आप सल्फाइड ओर्स को हीट करें इन sufficient supply of ऑक्सीजन, तो आपको SO2 मिल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन सल्फाइड का, इसमें आयरन सल्फाइड ऑन ट्रीटमेंट विद O2, मतलब सफिशिएंट सप्लाई अगर हम ऑक्सीजन के रखें तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। देन SO2 गैस बनती है अलोंग विद फेरिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द इक्वेशंस में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है, हैविंग पंजेंट स्मेल। इट इज हाईली soluble in water and it liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin। So now we will study about the acidic nature of SO2। SO2 is an oxide of sulfur and sulfur is a non-metal। हमने इससे लास्ट वीडियो में किया था कि नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स जो होती हैं जनरली दे आर एसिडिक इन नेचर। दे आर एसिडिक बिकॉज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गिव एन एसिड। सिमिलरली SO2 जो होता है इन वाटर इट फॉर्म सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। तो SO2 जो है वो पानी में सल्फरस एसिड बनाता है, इसी वजह से ये एसिडिक नेचर की होती है और यही कारण है कि SO2 इन वाटर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। Next we will talk about the reaction of SO2 with NaOH
और NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। SO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले Na2SO3 मीन सोडियम सल्फाइड बनाता है, लेकिन अगर SO2 एक्सेस में प्रेजेंट हो तो सोडियम सल्फाइड SO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। तो आप इक्वेशंस भी देख सकते हैं कि जिसमें NaOH SO2 के साथ रिएक्ट करके Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनाता है, and in presence of excess of SO2 this sodium sulfide react with SO2 to form sodium bisulfite। अब हम SO2 के और रिएक्शंस की बात करेंगे। SO2 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज चारकोल टू फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें SO2 जो है इट इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और अगले रिएक्शन में SO2 इट कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3। SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, and this reaction between SO2 and oxygen occur in a presence of a catalyst V2O5 और vanadium 5 oxide। तो आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा था और अब इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में भी डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 व्हेन मॉइस्ट इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसी भी चीज की रिडक्शन कर सकता है। लाइक SO2 कैन कन्वर्ट Fe3+ मीन फेरिक आयन टू Fe2+, यानी कि फेरस आयन। तो SO2 फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और फेरस में है +2। तो जब भी किसी भी आयन का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हो रही है। तो SO2 कैन रिड्यूस फेरिक आयन टू फेरस आयन। नाउ डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस को कैसे डिटेक्ट करें? हमें कोई गैस दी हो और हमें ये कंफर्म करना हो कि ये गैस जो है वो SO2 है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम सल्फर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट decolorizes the acidified potassium permanganate solution। जब SO2 गैस को परमैंगनेट सॉल्यूशन में पास किया जाता है, ये जो परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है इट इज पिंक और वॉयलेट इन कलर, तो ये कलरलेस हो जाता है। दिस चेंज इन कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस indicates that the gas being tested is SO2। और इस रिएक्शन में SO2 it behave as reducing agent while KMnO4 is behaving as oxidizing agent। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि SO2 जो है वो KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है, पर व्हाट डज दिस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन मींस? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट में 1-2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालें तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है आफ्टर एडिंग
dilute सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है। तो अब इस रिएक्शन की केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि SO2 ये परमैंगनेट आयन किसको बोलते हैं? MnO4 माइनस को। इसको रिड्यूस करके मैंगनीज आयन में Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर लेता है। नाउ ये जो परमैंगनेट आयन होता है इट इज पिंक और वॉयलेट इन कलर, और आफ्टर रिडक्शन ये जो है कलरलेस Mn2 प्लस में चेंज हो जाता है। और इसी रिएक्शन का हमने यूज किया है फॉर डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस। इस रिएक्शन में परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो +7 से +2 में चेंज हो गया। इट मींस परमैंगनेट आयन की रिडक्शन हो गई बाय SO2। अब हम बात करेंगे SO2 एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट हमने इससे पहले भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप बताइए कि कौन सा ब्लीचिंग एजेंट किया था हमने? यस, क्लोरीन किया था। तो SO2 भी क्लोरीन की तरह ही ब्लीचिंग एजेंट होता है, बट दोनों की ब्लीचिंग में डिफरेंस होता है। क्लोरीन में जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और उसमें ब्लीचिंग के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है। वाइल अगर हम SO2 की बात करें तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में SO2 H2SO4 बनाता है एंड it also produces nascent hydrogen, and this nascent hydrogen is responsible for bleaching property of SO2. Now जब colored substance इस nascent hydrogen के contact में आता है तो वो colorless हो जाता है, but bleaching of SO2 जो है वो temporary है। क्यों temporary है? वो इसलिए है क्योंकि ये जो कलरलेस सब्सटेंस है इन प्रेजेंस ऑफ एयर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और दोबारा से कलर्ड मटेरियल में चेंज हो जाता है। और यही डिसएडवांटेज है SO2 के ब्लीचिंग एक्शन का कि इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है इट इज टेम्परेरी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी? because here bleaching is due to liberation of nascent hydrogen and due to the process of reduction. Colorless substance can again get oxidized by air to colored substance, so its action is temporary. Now structure of SO2. SO2 is an angular molecule. इसका स्ट्रक्चर इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि the two SO bonds in a molecule of SO2 are equal. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ओजोन में भी देखा था, उसका रीजन था रेजोनेंस। तो सिमिलरली SO2 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जिसकी वजह से दोनों SO bonds इक्वल होते हैं। सो आंसर इज ड्यू टू रेजोनेंस। It is a resonance hybrid of two canonical forms, so two SO bonds are equal. लेकिन अगर सिर्फ SO2 का स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो आप SO2 का स्ट्रक्चर वही वाला बनाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे तो आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ SO2। एग्ज़ाम में बहुत ही कम चांसेस हैं इसके आने के, बट फिर भी एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट
आपको पता होने चाहिए कि SO2 कहाँ कहाँ यूज होता है. It is used in refining petroleum and sugar, in bleaching wool and silk, as an anti-clor, disinfectant and preservative. It is also used in the manufacture of sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide and calcium hydrogen sulfide. ये सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, तो इनको बनाने में SO2 का यूज होता है. एंड दिस लिक्विड SO2, it is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals. Now we will take some important questions related to the topic covered in the video. तो पहला क्वेश्चन है, which form of sulfur show paramagnetic behavior? तो इसका आंसर है S2 फॉर्म, क्योंकि S2 फॉर्म में we have unpaired electron in its anti-bonding molecular orbitals. तो आप आंसर देख भी सकते हैं. Then next question is, why is bleaching action of SO2 temporary? तो मैंने आपको बताया था कि SO2 में bleaching is due to the liberation of nascent hydrogen and bleaching takes place due to reduction process. तो जब भी कोई colored substance reduce होके colorless बनता है, then ये जो colorless substance होता है, it can get oxidized by the air to again form colored substance. तो इसलिए SO2 का bleaching action जो है वो temporary होता है. Next question is, what happen when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3 salt? तो इसमें आपको रिएक्शन लिखना है SO2 का Fe3 प्लस के साथ, मीन फेरिक आयंस के साथ. तो आई होप आप लिख सकते हैं अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, comment on the nature of two SO bonds formed in SO2 molecule. Are the two SO bonds in this molecule equal? So answer will be yes. The two SO bonds in SO2 molecules are equal because of resonance. The next question is, how is the presence of SO2 डिटेक्टेड? इसमें हम सिंपल सा टेस्ट लिखेंगे कि SO2 being a reducing agent can decolorize the acidified potassium permanganate solution. और साथ ही साथ हम इक्वेशन भी लिख देंगे between SO2 and KMnO4. So next question is, कंप्लीट द रिएक्शन. तो ये क्वेश्चन जो है ये P ब्लॉक में जरूर आता है 2 मार्क्स का. तो फर्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन SO2 एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल. नेक्स्ट इज SO2 एंड वाटर. एंड इन द थर्ड रिएक्शन यू हैव टू राइट द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड SO2. तो आप दोनों ही रिएक्शंस लिख दीजिए. पहले रिएक्शन में NaOH SO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, और अगर SO2 एक्सेस में हो तो सोडियम सल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप दोनों इक्वेशंस लिख दीजिए इन केस अगर आपको समझ में ना आए कि आपको पहली इक्वेशन लिखनी है या दोनों लिखनी है. So next is reaction between oxygen and iron sulfide. Then reaction between sulfite ion and H plus ion. Then next question is, how is SO2 an air pollutant? तो SO2 जो है being acidic in nature,
ये जो है हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाता है, एंड दिस सल्फरस एसिड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो इस तरह से जो SO2 होता है इट इज एन एयर पोल्यूटेंट। तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल, S6 मॉलिक्यूल, SO2। तो इनका स्ट्रक्चर बनाने में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है। देन अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर, इसमें आपको S8 मॉलिक्यूल ही बनाना है। देन बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, इसमें भी आपको S8 मॉलिक्यूल बनाना है लाइक अल्फा सल्फर। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।